So dear student, myself Vivek Prajapati, and now I am going to start the class about material cost, element of cost, element of cost. So generally in a product, generally three type of cost involved. First is your material, labor, and your expenses. So the three एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग उसके बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कॉस्टिंग का बेसिक्स है. सो व्हाट इज द मेटेरियल कॉस्ट? सो मेटेरियल कॉस्ट मींस एज पर सीमा मेटेरियल कॉस्ट एक कॉस्ट है. मेटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी. इट इज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड टू ए अंडरटेकिंग. It is the cost of the commodity supplied to undertaking. So material cost include the cost of procurement, freight inward, taxes, insurance, trade. All this cost has to be added, and trade discount, rebate, or now sales tax is removed. It is GST, etc. are deducted from the material cost. So material cost in a particular product. सपोज ये पेन है तो मेजर रॉ मेटेरियल इसमें क्या है? प्लास्टिक. यू कैन से प्लास्टिक इज द मेजर रॉ मेटेरियल. सो रॉ मेटेरियल इज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड टू ए अंडरटेकिंग. मीन्स इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. सो इनपुट इज योर रॉ मेटेरियल्स. देन टू टाइप ऑफ रॉ materials is classified into two types, that is direct material and indirect material. So what is direct material? It is the by seeing the product you can identify what is the major components. For example in the pen major components क्या है? इसमें प्लास्टिक है. so plastic is the major component. so by identify the product, by see the product, you know what is the major component, that is called direct material. and indirect material क्या है? it is not the major component of the finished product. so that is called indirect material. जैसे हो गया ब्रिक्स. ब्रिक्स में मेजर कंपोनेंट क्या है? क्ले. लेदर शू में मेजर कंपोनेंट्स क्या है? योर लेदर. आयरन चेयर में, लोहा का चेयर में मेजर कंपोनेंट क्या है? लोहा है. वुड चेयर में मेजर कंपोनेंट क्या है? वुड है. सो डायरेक्ट मटेरियल्स मीन्स which direct material are the material which are present in finished product or identified in the finished product are called direct material. means in the finished product major components क्या होता है? direct material ही रहता है, but it is easily identified. for example clay in the bricks, leather in the tools, and steel in the machines, timber in the furniture, and cloth in the garments, etc. Then indirect material are those material which do not normally form part. do not normally form part. इसको याद रखिए. ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो भी फिनिश प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल नॉट फॉर्म पार्ट, मेजर पार्ट इसका नहीं रहता. जैसे हो गया नीव. पेन का क्या है? ये नीव. So lubricants, oil or small tools, gas or cotton waste are known as the indirect materials. Got my point? Then labor. labor cost मतलब हो गया एक चीज बनाने के लिए हम लोग लेबर को एंगेज करते हैं. हम लोग क्या देते हैं? उसको वेजेस देते हैं और सैलरी देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट. सो लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड सो मेनी थिंग. तो बेसिक हो सकता है, डीए हो सकता है, और एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी और रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी होगा उसको हम लोग देते हैं. सो ऑल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ योर लेबर कॉस्ट. सो लेबर कॉस्ट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट लेबर एंड indirect labor. So direct labor are those labor who are directly engaged in the production, whereas indirect labor are those labor which are not directly engaged in the production but they help the production department for production. जैसे हो गया स्टोर डिपार्टमेंट,
accounts department or repairing departments, all these. So let's see. Seema defined the cost of the remuneration or wages or salary or commission or bonus, PF, ESI, gratuity, overtime, idle time, wages of employee is known as your labor cost. So direct labor are the attribute hold to the particular product or process or job called direct labor. Means for particular job और particular product और process के लिए अगर असाइन किया गया कोई आदमी को और हम लोग उसको वेजेस देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस. इट इज द लेबर यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. So raw material has to be converted into finished product. Machine operator, shoemaker, carpenter, tailor are known as direct labor. Indirect labor means are cannot identify with the particular product. Indirect labor particular product or process के लिए identify cannot identify with a product or process or job is called indirect labor. For example, supervisor, inspector, clerk, peon, watchman are known as indirect labor. Next, expenses. अगर मेटेरियल और लेबर को छोड़ के जो भी खर्चा इनकर्ड किया उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं. Got my point? So direct expenses or indirect expenses. Let's see. The cost of service provided to a undertaking and internal cost. It is cost of use of own asset. It is a cost of services provided to a undertaking. Means it is a service cost. Undertaking को हम लोग जब सर्विस देते हैं जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस. इट इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ ओन एसेट. आप रिपेयर करते हैं, एक एसेट को रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंसेस. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी आइडेंटिफाई विथ एलोकेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक्सेप्ट इन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट material called expenses. Expenses incurred specially for particular product or process is known as direct expenses. These are called chargeable expenses. For example, hiring charges for machinery specially hire particular process and cost of drawing and designing. एक particular जैसे हो गया, आप देखे होंगे बहुत बड़ा स्टेचू बना है अभी इंडिया में. क्या किसका बना? पटेल साहब का. सो व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब. मटेरियल और लेबर छोड़ के कोई भी डायरेक्ट खर्चा इनकर्ड हुआ तो डिजाइनिंग हो सकता है और हायरिंग चार्जेस होता है पर्टिकुलर मशीनरी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ के जो भी खर्चा करेंगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे हो गया फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, पावर, जनरल रिपेयर्स, नोन एज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन ओवरहेड. ओवरहेड इज द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, and indirect material, indirect labor and indirect expenses is known as overhead. So overhead is classified into production overhead, administrative overhead, selling and distribution overhead. ठीक है. सो प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या होगा? जो प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा करते हैं उसको होता है प्रोडक्शन ओवरहेड. जो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे हो गया आपका स्टाफ का सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी और टेलीफोन एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग जो खर्चा करते हैं, जैसे आपका डिलीवरी वैन्स हो गया, सैलरी हो गया, रिपेयर हो गया डिलीवरी वैन्स का, और सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग हो गया, सेलिंग एंड सस्पेंड सैलरी, कमीशन हो गया. सो दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंस. सो एक बढ़िया चार्ट मैंने बनाया है, सो यू कैन गो थ्रू इट. मटेरियल, डायरेक्ट
material, indirect material, labor direct and indirect, expenses direct and indirect. So direct material, direct labor एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड. समझ में? सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसको ओवरहेड बोलते हैं. एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोन एज प्राइम कॉस्ट. So thank you friends, it is all about the element of costing. So thank you.